Hello everyone, welcome back to the channel Nursing Officers. This is Abdarwani and today we are going to start the next topic of mental health disorders. Before starting, like and subscribe my channel Nursing Officers. Let us start with the MCQ. A 55 years old man was admitted after a motor vehicle accident with multiple injuries. His friends reported that he had been seeing a psychiatrist for an unknown reason or unknown diagnosis. He stated that patient sometimes gets hyper for no reason and becomes violent and sometimes is depressed. Which psychiatric of aggression and violence? ओके एक 55 years old patient हॉस्पिटल में एडमिट होता है विद द RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. ओके हिज फ्रेंड स्टेटस while taking subjective data by the at the hospital, his friend states, उसका दोस्त कहता है कि ये साइकेट्रिस्ट के पास जाता था इससे पहले और उसने कहा कि जो ये पेशेंट है ये कभी कभार हाइपर होता है विदाउट रीज़न और हाइपर होने की वजह से फिर ये वायलेंट बन जाता है. ओके और कभी कभार ये डिप्रेस्ड रह जाता है. हमें देखना है अब विच ऑफ द डिजीजेस कम्स अंडर दिस. ओके we will focus upon the symptoms. Symptoms are like this: the patient gets hyper and violent and is depressed. Two symptoms are there. We will categorize it: hyper, violent and depression. Then we will find which of the diseases contains these two elements, that is the bipolar disorder. That is the bipolar disorder. Bipolar disorder. So today we are going to discuss about bipolar and related disorder and mania. Mania will come into the related disorder. Okay, first we will study about the bipolar disorder and then we will study about the mania and other small things which comes under the mood disorders. So let's move towards the definition. Bipolar disorder, by the name itself it means bi, two diseases. Okay, bi is here, two diseases may be there, two symptoms may be there. As in case of subjective data in the MCQs which I have shown before, उस subjective data में क्या था? There were two types of symptoms. One was hyper and second was depression. Okay, hyper means elevated mood, depression means depressed mood. Okay, two types of symptoms are there. Okay, ये दो symptoms हम देखते हैं in the bipolar disorder. Bipolar disorder is also called as manic depressive illness. Very important, याद रखना. It's also called as manic depressive illness. This is mania, elevated mood, mania. Okay, this is depression. Okay, so bipolar disorder is defined as manic depressive illness or it's called as manic depression. Definition is like this: bipolar disorder is characterized by recurrent episodes of mania and depression in the same patient at different times. अगर किसी patient में different times में पहले mania हो, elevated mood हो, उसके बाद depression आए, depressive mood, उसको हम बोलते हैं bipolar disorder. Okay, so definition आपको ऐसे याद रखने हैं. अगर कभी कभार exam में आए objective, which of the following is characterized by episodes of mania and depression in the same patient at different times, आपको लिखना है bipolar disorder. Okay, mania just means the elevated mood. It's a type of mood disorder which I will explain later, and depression is a depressed mood. Okay, moving towards the causes, like we studied in the schizophrenia, that in schizophrenia the causes are unknown. Same is the case here. इसके भी causes unknown होते हैं, unknown causes, but some theories are there which support the cause. क्या क्या theory है? एक होता है biochemical theory. Biochemical theory. Biochemical theory क्या कहती है? Biochemical theory means imbalance in the neurotransmitters. Imbalance in the neurotransmitters. ये एग्जाम में आता है, इसलिए मैं हर किसी डिजीज में ये देता हूँ. Imbalance in the neurotransmitters. जब न्यूरोट्रांसमीटर्स में imbalance आए, that means bipolar disorder is there or
जैसे हमने स्किज़ोफ्रेनिया में पढ़ा था, वहाँ पे भी बायोकेमिकल थ्योरी थी, इम्बैलेंस इन द न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ भी वैसी ही केस है, बिकॉज दीज टू आर द साइकोटिक डिजीज। व्हेन देयर विल बी इम्बैलेंस इन द न्यूरोट्रांसमीटर्स, इट विल बी स्किज़ोफ्रेनिया और द बाइपोलर डिसऑर्डर। ओके, क्या क्या होता है इन केस ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर, ये आपको याद रखना है अच्छे से। डिक्रीज्ड सेरोटोनिन, यहां मैं लिखूंगा डिक्रीज्ड सेरोटोनिन। डिक्रीज सेरोटोनिन की वजह से क्या होता है, डिप्रेशन। डिक्रीज्ड सेरोटोनिन कॉजेज डिप्रेशन, आपको खुद ही आएगा ये दिमाग में। इंक्रीज्ड नॉरएपिनेफ्रिन, increased norepinephrine causes mania. Okay, then decreased acetylcholine, decreased acetylcholine causes mania. उसके बाद decreased adrenaline causes depression. See, अगर आपको कोई बोले what are the imbalances in the neurotransmitters, means there will be imbalances in the serotonin, there will be imbalance in the norepinephrine, there will be imbalance in the acetylcholine, there will be imbalance in the adrenaline. Okay, when there will be the decreased serotonin, there occurs the depression, because two diseases are there, two types of disorders are there, one is the depression and the mania. Okay, when there will be increased norepinephrine, that means mania. When there will be decreased acetylcholine, that means the patient has mania. When there will be decreased adrenaline, that means the patient has depression. This is the imbalance in the neurotransmitter, और ये बहुत important है in the exam point of view, that sometimes the object comes like this: decreases serotonin causes, okay, you should know that decreases serotonin causes depression, increases norepinephrine causes mania, decreased acetylcholine causes mania, decreases adrenaline causes depression. Okay, उसके बाद कुछ stressful events हैं जो trigger करते हैं. Some stressful events are there which trigger the disease. Okay, like anxiety, depressive events, post traumatic stress disorder. Okay, etc. जो भी stressful events होते हैं trigger करते हैं to cause the disease. Okay, so causes are unknown, some biochemical theories are there, okay, which support the cause. What are the biochemical theories? That means imbalance in the neurotransmitters. What kind of neurotransmitter imbalance occurs in case of bipolar disorder? That is the mania and depression. Okay, decreases serotonin causes depression, increases norepinephrine causes mania, decreases acetylcholine causes mania, decreases adrenaline causes depression. Okay, ये आपको याद रखना है. And some stressful events are there which trigger the diseases. इसके साथ साथ ही some of the books, मैंने कुछ books में पढ़ा, some of the books tells us about the neuroendocrine theories. ये भी आप थोड़ा सा याद रखना. What are the neuroendocrine theories? I will write here. Neuroendocrine theories. Okay, neuroendocrine theories क्या कहती हैं? That the bipolar disorder is present in the patients having thyroid disorders, having hypothyroidism, okay, having Cushing's disease, or having Addison's disease. This is not so much important, but they are rakhna that next theory is there, neuroendocrine theory. Neuroendocrine theory क्या कहती है हमें? That bipolar disorder is caused by the hypothyroidism, is seen in the patients with the hypothyroidism, Cushing's disease and Addison's disease. Okay, ठीक है ना? Now moving towards the types. Types are very important. अगर आपको types समझ में आए, आपको symptoms automatically समझ में आएंगे. What are the types? There are 3 types of bipolar disorder. First is bipolar first disorder. Second is bipolar second disorder. Third is cyclothymic disorder. Okay. First we'll study about bipolar first disorder. What do you mean by bipolar first disorder?
बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर में क्या कहते हैं, इट इज़ अ डायग्नोसिस गिवन टू एन इंडिविजुअल हु इज एक्सपीरियंस manic episode or has history of 1 or 2 manic episodes. The client may also have experienced episodes of depression. The manic symptoms may be severe and needs immediate hospitalization. Psychotic features may be also noted. Okay. बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, एक मैनिक एपिसोड होता है प्रेजेंट पेशेंट में, ओके, या हम बोल सकते हैं पेशेंट को हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है कोई मैनिक एपिसोड्स की, एक या दो मैनिक एपिसोड्स, ओके। मगर यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, दैट मैनिक एपिसोड्स आर सीवियर इन नेचर, मैनिक एपिसोड्स आर सीवियर इन नेचर। मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये आपको याद रखना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बाइपोलर फर्स्ट एंड सेकंड। मैनिक एपिसोड्स क्या होते हैं, सीवियर। मैनिक एपिसोड्स आर सीवियर इन नेचर। सीवियर का मतलब क्या है, व्हेन मैनिक एपिसोड्स आर सीवियर इन नेचर दैट मीन्स साइकोटिक फीचर्स आर प्रेजेंट, साइकोटिक फीचर्स आर प्रेजेंट, लाइक साइकोटिक फीचर्स हम बोल सकते हैं, लाइक डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर होता है इस पेशेंट में, डिल्यूजन ऑफ पैरानॉइड डिल्यूजन होता है इस पेशेंट में, ठीक है ना। दैट मीन्स साइकोटिक फीचर। साइकोटिक फीचर कब होते हैं, व्हेन देयर विल बी इंक्रीज्ड मैनिक स्टेज, व्हेन देयर विल बी सीवियर मैनिया, व्हेन देयर विल बी सीवियर मैनिया। ये किस में हम देख सकते हैं, दिस ओकर्स इन बाइपोलर डिसऑर्डर फर्स्ट। इट इज डायग्नोसिस गिवन टू एन इंडिविजुअल, हाँ, इसमें मैनिक एपिसोड्स क्या होते हैं, सीवियर इन नेचर, ओके। ये आपको अच्छे से याद रखना है, दैट मैनिक एपिसोड्स आर सीवियर इन नेचर एंड पेशेंट एक्सपीरियंस करता है डिप्रेशन भी, एपिसोड्स भी, ओके। बट यहाँ पे एक बड़ा सा डिफरेंस क्या है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड में, दैट मैनिक एपिसोड्स आर सीवियर, दैट मीन्स देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ द डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन, ओके, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ द डिल्यूजन्स, ओके, ठीक है ना, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ द डिल्यूजन्स, ठीक है ना, साइकोटिक फीचर्स। और ये इतने सीवियर होते हैं दैट पेशेंट नीड्स इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, पेशेंट को इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, ओके। सेकंड, bipolar second disorder, it is the diagnosis given to an individual who is experiencing recurrent bouts of major depression with episodic occurrence of hypomania. The client has never experienced full manic episode. क्या बोलता है यहाँ पे, that client experiences recurrent bouts of major depression with episodic occurrence of hypomania. ओके, पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया का मतलब होता है इट्स अ लेसर और लेस डिग्री ऑफ मैनिया, लेसर डिग्री ऑफ मैनिया, लेसर डिग्री ऑफ मैनिया। और हम बोल सकते हैं मैनिया इज एलिवेशन ऑफ मूड, और हम बोल सकते हैं माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड, ओके। So when there will be mild elevation of mood, this is the main difference, okay. Bipolar first disorder means when there will be severe elevation of the mood. In the bipolar second disorder, there is the mild elevation in the mood, okay. So there occurs the hypomania and there occurs the recurrent bouts of major depression, okay. इस पेशेंट में क्या प्रेजेंट होता है, मेजर डिप्रेशन और प्लस हाइपोमेनिया, माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड। बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर में क्या हमने देखा, बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर में हमने देखा दैट इट कंटेन्स द मेजर मैनिक स्टेज, ओके, एंड some episodes of the depression. In bipolar second disorder, there hypomania occurs, lesser degree of this mania occurs with the major depression, okay. The client has never experienced full manic episode. जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा that it contains hypomania, full manic episode absent है, okay. So the client has never experienced full manic episode. This is very important, okay. अच्छे से समझे आप that the difference between bipolar first and bipolar second is just only that in bipolar first disorder there occurs the major manic stage with some episodes of the depression. In bipolar second disorder there occurs the minor manic stage means hypomania and there occurs the major depression, okay. And third type is here cyclothymic disorder. Cyclothymic disorder is mild form of bipolar disorder. Cyclothymic disorder क्या होता है, it is a mild form of bipolar disorder. अगर किसी भी पेशेंट में प्रेजेंस होगा डिप्रेशन, वो भी माइनर स्टेज का, और मेनिया वो भी हाइपोमेनिया वो भी माइनर स्टेज का, ठीक है ना, मेनिया भी माइनर स्टेज का, डिप्रेशन भी माइनर स्टेज का, ओके, फॉर एटलीस्ट 2 years, ठीक है ना, फॉर एटलीस्ट 2 years। यहां हम बोल सकते हैं इफ देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ एलिवेटेड मूड एंड सम पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन फॉर अबाउट 2 years ड्यूरेशन, उसको हम बोलते हैं साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। ये कभी कभार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। इट्स अ क्रोनिक मूड डिसऑर्डर ऑफ एटलीस्ट 2 year ड्यूरेशन, ठीक है ना। क्रोनिक हम इसीलिए कहेंगे बिकॉज इट्स फॉर प्रोलॉन्ग टाइम,
2 years ड्यूरेशन, ठीक है ना, विच इन्वॉल्व्स न्यूमरस पीरियड्स ऑफ एलिवेटेड मूड एंड पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन। ये भी मैनिया भी होता है और डिप्रेशन भी होता है, और जो इसका ड्यूरेशन होता है, जो हम यहाँ पे ये बोलता है दैट इट्स अ क्रोनिक मूड डिसऑर्डर, जो ड्यूरेशन होता है वो मोर देन 2 years होना चाहिए, दैट इज द साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, ठीक है ना। इन द टाइप्स वी स्टडीड अबाउट द बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर, बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर एंड साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। ओके, नाउ नेक्स्ट सिम्टम्स। सिम्टम्स को डिवाइड करते हैं हम इनटू 2 फॉर्म्स, बिकॉज मैंने पहले ही बोला था 2 types ऑफ सिम्टम्स आर देयर, 2 types ऑफ डिसऑर्डर्स इज देयर इन बाइपोलर डिसऑर्डर। वन इज द मैनिया, सेकंड इज द डिप्रेशन। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द डिप्रेसिव सिम्टम्स। डिप्रेसिव सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? डिक्रीज्ड मूड एंड स्पीच, फीलिंग टायर्ड, स्लीपिंग टू मच और टू लिटिल, सुसाइडल थॉट्स, लैक ऑफ एनर्जी, डिक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ठीक है ना। जो भी डिप्रेशन में सिम्टम्स होते हैं वो भी इसमें भी प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर क्या क्या होता है? जैसे ही रेस्टलेसनेस है, फीलिंग टायर्ड और लैक ऑफ एनर्जी, वर्थलेसनेस है, डिक्रीज्ड मूड, डिक्रीज्ड स्पीच और सुसाइडल थॉट्स, हम इसको बोल सकते हैं वर्थलेसनेस, ठीक है ना, रेस्टलेसनेस, ओके। वर्थलेसनेस, रेस्टलेसनेस में सब सिम्टम्स आते हैं। वर्थलेसनेस मींस डिक्रीज्ड मूड एंड स्पीच, ओके, डिक्रीज्ड मूड एंड स्पीच, सुसाइडल थॉट्स, ठीक है ना, डिक्रीज एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, रेस्टलेस में फीलिंग टायर्ड, ओके, लैक ऑफ एनर्जी, स्लीपिंग टू मच, इट मींस रेस्टलेसनेस और टू लिटिल, ठीक है ना। ये किसमें आता है? इन द डिप्रेसिव फॉर्म, ये आप याद रखना। सो डिप्रेशन के सिम्टम्स सारे आते हैं इफ देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ द डिप्रेशन इन केस ऑफ दिस बाइपोलर डिसऑर्डर, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। नाउ द मैनिक फॉर्म। मैनिक फॉर्म में क्या होता है? मैनिक फॉर्म मींस एलिवेटेड मूड। एलिवेटेड मूड में क्या आएगा? सडन इंक्रीज इन एनर्जी लेवल, नॉन स्टॉप टॉकिंग, increased self-confidence, focused on completing the topic, insomnia, involved in risky activities, okay, sudden increase in the energy level होता है, non-stop talking क्योंकि elevated mood होता है इसमें, okay, increased self-confidence होता है इस पेशेंट में, क्योंकि जो भी पेशेंट विद एलिवेटेड मूड हो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, ठीक है ना, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज होती है। फोकस्ड ऑन कंप्लीटिंग द टॉपिक, इंसोम्निया मींस स्लीपलेसनेस एंड इन्वॉल्वड इन द रिस्की एक्टिविटीज, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंट, क्लाइंट बहुत कॉन्फिडेंट होता है इन एवरी एक्टिविटी, सो ही और शी विल बी इन्वॉल्वड इन द रिस्की एक्टिविटीज। यहां हम बोल सकते हैं इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी, okay, moving forward, diagnosis is there. How we will diagnose the patient with the bipolar disorder? By MMSE, mini mental states examination. इंशाल्लाह coming topic में मैं पढ़ाऊंगा आपको what do you mean by mini mental states examination and how we will do this, okay, how we will take this examination, okay, ठीक है ना। and brain imaging studies, this is very important, brain imaging studies। brain imaging studies में क्या करते हैं हम? CT और MRI of the brain, CT और MRI। क्यों ऐसा क्यों है? ठीक है ना, क्योंकि ये पाया गया है जो किसी भी पेशेंट में बाइपोलर डिसऑर्डर प्रेजेंस होता है, ओके, उनमें क्या होता है? वेंट्रिकुलर डायलेशन, एक तो होता है वेंट्रिकल्स जो होते हैं ब्रेन में, उनमें वो डायलेट होते हैं, वेंट्रिकुलर डायलेशन, ओके। नेक्स्ट उसमें पाया गया है व्हाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटीज, ओके। दो चीजें आप देख सकते हो इन द ब्रेन इमेजिंग स्टडीज। वन इज द ब्रेन इमेज स्टडीज, क्या क्या कर सकते हैं हम? सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, ओके, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ऑफ द ब्रेन हम कर सकते हैं। दैट मींस क्या क्या? वेंट्रिकुलर डायलेशन होता है, हम पाते हैं इन द सीटी एंड एमआरआई, वेंट्रिकुलर डायलेशन एंड व्हाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटीज, ओके। और इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट कुछ कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था इन द न्यूरो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में, जैसे न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी थी, वहां पे न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी में क्या बोलता है वो हैव टू चेक द, वो क्या बोलते हैं? दैट बाइपोलर डिसऑर्डर इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द hypothyroid, okay, in case of the Cushing's disease and Addison's disease. For that we have to check the thyroid levels, okay. Then after that we have to check the electrolyte levels, okay, ठीक है ना। सो इसके लिए हमें ब्लड टेस्ट बहुत जरूरी करने हैं। सो डायग्नोसिस हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस में क्या इंपॉर्टेंट ज्यादा है? ब्रेन इमेजिंग स्टडीज इंपॉर्टेंट है, सीटी एमआरआई ऑफ द ब्रेन इंपॉर्टेंट है, ओके। इन द सीटी एमआरआई ऑफ द ब्रेन वी विल सी वेंट्रिकुलर डायलेशन, व्हाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटीज, ओके। एंड इसके साथ साथ ही हमें ब्लड टेस्ट करने हैं। ब्लड टेस्ट में हमें क्या पता चलता है? मतलब वी हैव टू चेक अबाउट द थायराइड लेवल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। व्हाई? अगर कोई पूछे क्यों करना होता है ब्लड टेस्ट इन केस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, क्योंकि
इन द न्यूरोएंडोक्राइन थ्योरी जो मैंने पढ़ाई थी किसमें, कॉजेज में, वो कहती है दैट बाइपोलर डिसऑर्डर्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म, कुशनस डिजीज एंड इन केस ऑफ एडिसनस डिजीज. ओके, सो ब्लड टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर एंड इवन द ब्रेन इमेजिंग स्टडीज. ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स द मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. मैनेजमेंट में जैसे हमने स्किज़ोफ्रेनिया में पढ़ा था वैसे यहाँ पे भी है. फार्माकोथेरेपी इज देयर, वी विल गिव द ड्रग्स टू द पेशेंट. फर्स्टली द मेन एंड द इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर द पेशेंट हैविंग द बाइपोलर डिसऑर्डर और हैविंग द मैनिक एपिसोड इज द लिथियम कार्बोनेट हम देते हैं, जो मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद. लिथियम के बारे में अच्छे से, उसका डोजेज वगैरह, ठीक है ना, टॉक्सिक लेवल्स एंड साइड इफेक्ट्स, ठीक है ना. दैट इज अ लिथियम कार्बोनेट हम देते हैं इस पेशेंट में. एंड एंटी डिप्रेसेंट कौन कौन से एंटी डिप्रेसेंट हम देंगे पेशेंट को, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल हम देंगे एमिरिपीन, ओके, और हम देंगे नॉरट्रिप्टिलिन, ओके, या हम दे सकते हैं इमिट्रिप्टिलिन, ओके, यह हम दे सकते हैं फ्लूजिटीन. ओके, फ्लूजिटीन, ये सारे इंपॉर्टेंट, एक दो याद रखो आप. एमेरिपीन, नॉरट्रिप्टिलिन जो आपको आसान लगे इनमें, इमिट्रिप्टिलिन, फ्लूजिटीन. या हम एंटीसाइकोटिक दे सकते हैं. एंटीसाइकोटिक कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल जो हमने पढ़े थे किसमें भी, इन केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, रिस्पेरिडोन, ओलेंजिपिन, ओके, हेलोपेराडोल इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना आप. ओके, एंटीसाइकोटिक कौन देख सकते हैं इसमें, रिस्पेरिडोन, ओलेंजिपिन एंड हेलोपेराडोल. ओके, यहां मूड स्टेबलाइजर्स दे सकते हैं कौन कौन से, सोडियम वैल्पोरेट, ओके, कार्बामेज़ेपिन, या हम बेंजोडाइजेपिन्स दे सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल एल्प्राजोलिम वगैरह दे सकते हैं हम, डाइज़ेपाम वगैरह, ठीक है ना, टू द पेशेंट. ओके, so pharmacotherapy means providing medication to the patient to settle down the patient, ठीक है ना, for its depressed mood or for its elevated mood. For that we will give lithium. Okay, lithium is a drug of choice in case of mania, okay, or in case of bipolar disorder. And we will give antidepressant, for example emerapine, nortriptyline, amitriptyline, fluoxetine, etc. we will give to the patient. एक दो याद रखना बस, वही इंपॉर्टेंट है. Antipsychotics we will give to the patient, for example risperidone, olanzapine, haloperidol, etc. okay, and we'll give mood stabilizers to the patient, for example sodium valproate, carbamazepine and benzodiazepines, जिसमें हम दे सकते हैं डाइज़ेपाम, एल्प्राजोलिम, क्लोंazepam वगैरह, जो आप याद रखो, ठीक है ना. एंड फार्माकोथेरेपी के साथ साथ ही we'll provide ECT to the patient. लोअर डोज ऑफ ECT is recommended for the इन केस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर एंड मैनिया, ठीक है ना. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव ये मैं इंशाल्लाह क्लास दूंगा इन द कमिंग लेक्चर्स. एंड इसी के साथ साथ ही विल प्रोवाइड साइकोसोशल थेरेपीज, फॉर एग्जांपल फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी एंड लाइट थेरेपी इज हियर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइट थेरेपी एंड फोटोथेरेपी इज very recommended in case of depression. Okay, depression जिस किसी भी पेशेंट में है उसको लाइट थेरेपी और फोटोथेरेपी देते हैं. ओके, इट्स रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट हु आर डिप्रेस्ड. ओके, in case of depression, light therapy and phototherapy. So management is like this. In a case of management, we will provide the drugs to the patient, for example lithium carbonate, antidepressant, antipsychotics, mood stabilizers, lower dose of ECT, psychosocial therapies, for example family therapy, group therapy, light therapy, phototherapy. ठीक है ना, मैंने अच्छे से पढ़ाया आपको. एंटी डिप्रेसेंट कौन कौन से दे सकते हैं हमें, ठीक है ना, एंटीसाइकोटिक्स कौन कौन दे सकते हैं, मूड स्टेबलाइजर्स कौन कौन दे सकते हैं, एंड लिथियम मैं आगे लेक्चर में पढ़ाऊंगा. ओके, सो दिस वाज अबाउट द बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है ना. आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ अबाउट द बाइपोलर डिसऑर्डर. आई विल टेक अ क्विक रिव्यू, हमने क्या क्या पढ़ा इन केस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है ना. फर्स्टली देयर वाज अ डेफिनेशन रिगार्डिंग द बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है ना, बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है ना. बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, मेनिया प्लस डिप्रेशन. जिस किसी भी पेशेंट में मेनिया प्लस डिप्रेशन हो, ठीक है ना, एट डिफरेंट इंटरवल्स इन द सेम पेशेंट, एट डिफरेंट इंटरवल्स हम बोलेंगे, पहले मेनिया होगा फिर किसी टाइम के बाद डिप्रेशन होगा, एट डिफरेंट इंटरवल्स, दैट मीन्स बाइपोलर डिसऑर्डर. उसके बाद हमने पढ़ा कॉजेज. क्या पढ़ा, कॉजेज में हमने देखा दैट इट्स कॉज इज अननोन बट सम थ्योरीज आर देयर. फर्स्टली आई टोल्ड यू अबाउट द बायोकेमिकल थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, उसमें पढ़ना. ओके, उसमें पढ़ना ये सारा कुछ जो भी बायोकेमिकल थ्योरी बताता है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला आपको, डिक्रीज सेरोटोनिन कॉज डिप्रेशन, इंक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन कॉज मैनिया, डिक्रीज एड्रेनलिन कॉज डिप्रेसिव, ओके, डिप्रेशन एंड डिक्रीज एसिटाइलकोलिन कॉज मैनिया. ये आप याद रखें इन द बायोकेमिकल थ्योरीज. उसके बाद मैंने बोला थोड़ा सा आपको स्ट्रेसफुल इवेंट्स, कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं वो कॉज करते हैं क्या, बाइपोलर डिसऑर्डर. उसके बाद मैंने आपको बोला दैट
किसी किसी बुक्स में लिखा होता है न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरीज। न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरीज में क्या बताते हैं, जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है वो प्रेजेंट होता है किस पेशेंट में, हैविंग द कुशिनस डिजीज, हैविंग द एडिसन्स डिजीज एंड हैविंग द थायराइड एब्नॉर्मलिटीज और हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बोला दैट टाइप्स आर देयर व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट इज बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर। यहां देखना, अगर किसी को उस टाइम समझ में नहीं आया, क्विक रिव्यू में फिर से समझ में आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर? ओके, बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर, और हमने पढ़ा था लास्टली साइक्लोथाइमिया। जो बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर था, बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर और बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या है? बस इनके साथ बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर हमने क्या देखा, वहां पे मेजर मैनिक स्टेज था। ओके, मेजर मैनिया था। ओके, मेजर मैनिया मीन्स विद द साइकोटिक फीचर्स, ठीक है ना, एंड देयर वाज प्रेजेंस ऑफ सम एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। ये था किसमें? इन द बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर। बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर क्या कहती है? दैट इट कंटेन्स द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। उसमें मेजर मैनिया था, इसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स था, एंड इट कंटेन्स द हाइपोमेनिया प्लस हाइपोमेनिया इज द लेसर डिग्री ऑफ द मैनिया। ओके, लेसर डिग्री ऑफ द मैनिया मीन्स लेसर एलिवेशन ऑफ द मूड, हाइपोमेनिया, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन बाइपोलर फर्स्ट एंड बाइपोलर सेकंड। साइक्लोथाइमिया इज अ लेसर एलिवेशन इन द मूड, बट फॉर इट्स अ मेजर मूड डिसऑर्डर। क्यों मेजर बोलते हैं हम? फॉर अगर किसी पेशेंट में प्रेजेंट हो डिप्रेशन प्लस मैनिया, मगर इन द लोअर स्टेजेस फॉर अबाउट हम बोल सकते हैं फॉर अबाउट 2 years, ठीक है ना, 2 साल तक अगर किसी पेशेंट में डिप्रेशन हो, फिर मैनिया हो, फिर से डिप्रेशन हो, फिर से मैनिया हो, उस पेशेंट को क्या होता है? साइक्लोथाइमिया। ओके, दीज 3 points आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये याद रखना आप, टाइप्स फर्स्ट, सेकंड एंड साइक्लोथाइमिया, और डिफरेंस बिटवीन बाइपोलर फर्स्ट एंड बाइपोलर सेकंड। देन उसके बाद मैंने क्या पढ़ा है आपको? द सिम्टम्स इज डिवाइड इनटू 2 types। सिम्टम्स में क्या क्या हमने देखा? द फर्स्ट सिम्टम वाज द डिप्रेसिव सिम्टम्स। ओके, second symptom was the depressive, is divided into two sub symptoms, first symptom depressive symptoms and manic symptoms, ठीक है ना, वो मैंने अलग अलग पढ़ाया आपको। जैसे डिप्रेसिव सिम्टम्स मैंने बोला वर्थलेसनेस, रेस्टलेसनेस, मैनिक सिम्टम्स एलिवेशन ऑफ द मूड मैंने बोला आपको, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा दैट डायग्नोसिस कैसे होती है इस पेशेंट को, डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। ओके, डायग्नोसिस में क्या इंपॉर्टेंट है? पहले ही मैंने बोला MMSE मिनिमल स्टेटस एग्जामिनेशन। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रेन इमेजिंग स्टडीज, इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है, ब्रेन इमेजिंग स्टडीज। ओके, ब्रेन इमेजिंग स्टडीज में क्या देखा हमने? हम MRI और CT स्कैन करते हैं ब्रेन का, वहां पे हम जो भी मैनिक पेशेंट होता है, जो भी मैनिक क्लाइंट होता है, उसको वेंट्रिकुलर डायलेशन होता है, व्हाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटीज देखा जाता है। ओके, इन केस ऑफ ब्रेन इमेजिंग स्टडीज, एंड इवन द ब्लड टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। कोई आपको वाई ब्लड टेस्ट इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ bipolar disorder? Because to check the thyroid level and electrolyte. क्यों? Because neuroendocrine causes क्या बोलती हैं, factors क्या बोलते हैं, hypothesis क्या बोलते हैं, that bipolar disorder is present in the patients having the hypothyroidism, in patients having the Cushing's disease and patients having the Addison's disease. Okay, उसके बाद हमने पढ़ा फार्माकोथेरेपी और मैनेजमेंट ऑफ दिस डिसऑर्डर। मैनेजमेंट में हमने पढ़ा फार्माकोथेरेपी में मैंने बोला आपको that lithium is there, antipsychotics is there, mood stabilizer is there, and even हमने क्या पढ़ा वहाँ पे that उसके बाद हमने पढ़ा फार्माकोथेरेपी के बाद ECT, लोअर डोज ऑफ द ECT, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा थेरेपीज। ओके, थेरेपीज में इंपॉर्टेंट मैंने बोला आपको ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी के अलावा फोटोथेरेपी। ओके, फोटोथेरेपी किसको हम देते हैं? इन केस ऑफ डिप्रेसिव पेशेंट, ठीक है ना, ये आप याद रखना। दिस वाज ऑल अबाउट द बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ठीक है ना। अगर किसी जगह कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कहाँ पे कंफ्यूजन है, मैं दूसरा लेक्चर लूंगा टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक इज द मैनिया। जैसे हमने पढ़ा वहां पे दैट द बाइपोलर डिसऑर्डर कंसिस्ट्स ऑफ, इसमें क्या क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर में? दैट बाइपोलर डिसऑर्डर कंसिस्ट्स ऑफ मैनिया एंड डिप्रेशन। ओके, हम देखेंगे व्हाट इज मैनिया। मैनिया इज अ टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर इन विच central features of over activity, mood changes, and self-important ideas. It is characterized by pressure of speech, increased psychomotor activity, and elevated mood. Firstly, mania is derived from the Latin word which means madness. Mania का मतलब क्या है? It is a Latin word.
ये लेटिन वर्ड है, इसका मतलब है मैडनेस, ठीक है ना, मैडनेस, ठीक है ना। मैनिया इज अ टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर इन विच फीचर्स ऑफ, देखो फीचर्स देखो यहाँ पे आप, फीचर्स आर ओवर एक्टिविटी, ठीक है ना। ओवर एक्टिविटी क्या होता है, पहले देखो आप, ओवर एक्टिविटी, then mood changes and self important ideas. First I will tell you about the over activity. ये over activity का मतलब क्या होता है? Over activity means level of activity that is higher than normal. Okay, level of activity that is higher than normal, level of activity that is higher than normal. Okay, ठीक है ना, लेवल ऑफ एक्टिविटी दैट इज हायर देन नॉर्मल, ठीक है ना। और इसके बाद मूड चेंजेस, मूड चेंजेस में क्या आता है, एलिवेटेड मूड, क्या आता है यहाँ पे, एलिवेटेड मूड, ठीक है ना। एंड सेल्फ इंपॉर्टेंट आइडियाज, वो बिलीफ जो पेशेंट को होता है, क्या बिलीफ होता है पेशेंट को कि उसके आइडियाज इंपॉर्टेंट हैं बाकी सबके आइडियाज के बजाय, उसके आइडियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सेल्फ इंपॉर्टेंट आइडियाज। इट इज वन ऑफ द साइकोटिक फीचर्स एंड कैन बी रिजेंबल्ड, इसको बोल सकते हैं हम डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर, वो मैं पढ़ूंगा आगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर। सो हियर सेल्फ इंपॉर्टेंट आइडियाज मीन्स द बिलीफ दैट योर आइडियाज आर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। ओके, इट कैन बी resembled with other psychotic features like delusion of the grandeur. Okay, it is characterized by, इसमें बाकी सिम्टम्स क्या होते हैं, इन प्रेशर ऑफ स्पीच। ओके, प्रेशर ऑफ स्पीच मीन्स इंक्रीज ट्यून ऑफ द स्पीच वाइल स्पीकिंग। ओके, वाइल स्पीकिंग अगर आपका ट्यून ज्यादा हो दैट मीन्स इंक्रीज प्रेशर ऑफ द स्पीच, या प्रेशर ऑफ द स्पीच, या इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी क्या हम बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय साइकोमोटर, साइकोमोटर बोलेंगे हम बिहेवियर दैट कंबाइन्स कॉग्निटिव फंक्शंस विद फिजिकल सिम्टम्स। ओके, बिहेवियर मैं यहां पे लिखूंगा बिहेवियर दैट कंबाइन्स, ठीक है ना, दैट कंबाइन्स कॉग्निटिव फंक्शंस, ठीक है ना, कॉग्निटिव फंक्शंस दैट कंबाइन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहेवियर दैट कंबाइन्स कॉग्निटिव फंक्शंस विद फिजिकल सिम्टम्स, वो बिहेवियर जो कंबाइन करता है कॉग्निटिव फंक्शंस फिजिकल सिम्टम के साथ, उसको हम बोलते हैं साइकोमोटर। क्या बोलते हैं, साइकोमोटर। ओके, ये क्या होता है, साइकोमोटर एक्टिविटीज बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, मतलब जिस किसी भी क्लाइंट में इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटीज होती है, वो क्या करता है, इंक्रीज्ड टॉकिंग। ओके, उसमें इंक्रीज्ड टॉकिंग होती है, ज्यादा बातें करता है और रिएक्शन ज्यादा होते हैं। अगर हम उसको कोई बात बोलें वो रिएक्ट ज्यादा करेगा, ठीक है ना, दैट मीन्स इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। ओके, इसमें दो चीजें आती हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस और फिजिकल सिम्टम्स भी, ठीक है ना। तो फिजिकल सिम्टम्स भी यूज कर सकता है और कॉग्निटिव फंक्शंस भी यूज कर सकता है, दैट मीन्स इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। एंड जो हमें पता है मैनिया मीन्स एलिवेटेड मूड इज देयर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनिया इज a type of mood disorder in which central features of overactivity, मैंने बोला what is overactivity, level of activity that is higher than normal, and mood changes, elevated mood and self important ideas means that वो believe कि patient के आइडियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि दूसरे, ठीक है ना, दैट मीन्स सेल्फ इंपॉर्टेंट आइडियाज। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेशर ऑफ स्पीच, यहाँ पे ट्यून आता है, ट्यून इंक्रीज्ड होता है, इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी एंड एलिवेटेड मूड। ओके, दैट्स अ मैनिया, मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनिया इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर इन विच सेंट्रल फीचर्स आर ओवर एक्टिविटी, मूड चेंजेस and self-important ideas. It is characterized by pressure of speech, increased psychomotor activity and elevated mood. इसके बाद we'll move towards the classification. जिसको ये classification अच्छे से समझ में आया, उसको symptoms आएंगे अच्छे से समझ में मैनिया के, और ऑटोमेटिकली उसको बाइपोलर डिसऑर्डर समझ में आएगा। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास, मतलब क्लासिफिकेशन क्या है इन केस ऑफ मैनिया। ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 stages. One is hypomania, mania without symptoms, mania with psychotic symptoms. Okay, hypomania, mania without psychotic symptoms के बगैर जो mania हो, mania with psychotic symptoms. hypomania क्या होता है, जैसे मैंने बोला उस टाइम आपको, hypomania is lesser degree of mania. ओके, या हम बोल सकते हैं इसको माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड, ठीक है ना। हाइपोमेनिया इज माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड, ठीक है ना। प्लस माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड के साथ साथ क्या होता है इसमें होता है इंक्रीज्ड सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग। आप देखो पहले
I will tell all the things. Hypomania is lesser degree of mania, mild elevation of mood. मगर इसी के साथ साथ क्या होता है इसमें increased sense of psychological well-being होता है. What do you mean by that? Means psychological well-being means mental wellness. Mental wellness. यहाँ हम बोल सकते हैं इसको psychological well-being means positive state of mind. क्या बोलते हैं इसको? Positive state of mind. State of mind. जिस किसी भी पेशेंट में माइल्ड एलिवेशन हो मूड का और पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ ऑटोमेटिकली उस पेशेंट में पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड होगा, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड साइकोलॉजिकल वेलबींग होगा, ठीक है ना. जिस किसी भी पेशेंट में माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड हो और साइकोलॉजिकल वेलबींग हो या पॉजिटिव, यहाँ उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, उसको हम बोलते हैं हाइपोमेनिया, उसको हम बोलते हैं हाइपोमेन. कलेक्टिवली दीज टू सिम्टम्स, जो ये दो सिम्टम्स हैं, लेसर डिग्री ऑफ मेनिया और इंक्रीज सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग, ये किस में प्रेजेंट होते हैं? इन केस ऑफ मेनिया, इन केस ऑफ हाइपोमेनिया, ठीक है ना. समझ में आया आपको? पहली क्लासिफिकेशन हाइपोमेनिया है, दैट इज अ लेसर डिग्री ऑफ मेनिया, जो अभी तक आपने पढ़ा. प्लस साथ में आपको याद रखना है, जिसको भी माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड हो उसको क्या होता है? इंक्रीजेस सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग. ओके, उसके बाद क्या होता है? मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, वो मेनिया जो साइकोटिक सिम्टम्स के बगैर हो, ठीक है ना. वो मेनिया जो साइकोटिक सिम्टम्स के बगैर हो. इसमें क्या प्रेजेंस होता है? एलिवेटेड मूड. क्या होता है? एलिवेटेड मूड. पता ही है मेनिया का मतलब ही है एलिवेटेड मूड, एलिवेटेड मूड. ओके, प्लस इसी के साथ साथ ही इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटीज होती है. क्या होती है? इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटीज. ओके, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटीज. ओके, कलेक्टिवली दीज सिम्टम्स आर कॉल्ड एज इलेशन. ओके, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे. ओके, इलेशन याद रखना. मेनिया विदाउट साइकोटिक, इसमें साइकोटिक सिम्टम्स नहीं होते हैं. हाइपोमेनिया से थोड़ा सा मेनिया का स्टेज ज्यादा होता है, मगर इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटीज के साथ होता है. ओके, इसको हम बोलते हैं इलेशन. ओके, थर्ड इज मेनिया विद साइकोटिक सिम्टम्स. मैंने पहले ही बोला था, वो मेनिया जिसका स्टेज ज्यादा हो, दैट मेनिया विच इज मोर एलिवेटेड, उसमें साइकोटिक सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, एलिवेटेड, इसमें क्या होता है? एलिवेटेड मूड प्लस डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, ओके. डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर मीन्स वो फॉल्स बिलीफ जिसमें पेशेंट को लगता है कि वो ज्यादा वर्दी हैं, ओके, वो ज्यादा अमीर हैं या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर. ये किस में प्रेजेंट होता है? विद साइकोटिक सिम्टम्स. ऑटोमेटिकली जिसमें जितना ज्यादा मूड इंक्रीज होगा उतने ज्यादा सिम्टम्स इंक्रीज होंगे, ठीक है ना. एलिवेटेड मूड विद द डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर. पहले मैंने बोला क्लासिफिकेशन में हाइपोमेनिया, इट इज अ लेसर डिग्री ऑफ मेनिया विद द इंक्रीज ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग. ओके, साइकोलॉजिकल वेलबींग इज द पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स मींस एलिवेटेड मूड, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज. ओके, तीसरा है मेनिया विद साइकोटिक सिम्टम्स मींस एलिवेटेड मूड प्लस डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर प्लस डिल्यूजन ऑफ. इसको ऑटोमेटिकली हम बोलते हैं एक नाम, जो दोनों सिम्टम्स जब कंबाइन होता है इसको हम बोलते हैं एक्साल्टेशन. ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना. सो हमने तीन चीजें पढ़े, हाइपोमेनिया, मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, मेनिया विद साइकोटिक सिम्टम्स. ओके, मूविंग फॉरवर्ड विल मूव टुवर्ड्स द क्लिनिकल फीचर्स. पहले ही क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा मेनिया का? दैट इट कंटेन्स एलिवेटेड, एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड्स इंक्रीज होगा, इसमें एलिवेटेड मूड होगा. ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस, 5 E's हम बोलेंगे, 5 E. ओके, E for euthymia, E for euphoria, E for elation, E for exaltation, E for ecstasy. Okay, euthymia means a normal mood. euthymia का मतलब क्या होता है? A normal mood stage, ठीक है ना. नॉर्मल, ये याद रखना अच्छी तरह से. euthymia का मतलब होता है नॉर्मल मूड स्टेज. एग्जाम में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय euthymia? इट्स अ नॉर्मल मूड स्टेज. सारे एग्जाम में आते हैं, सारे इंपॉर्टेंट, अच्छे से देखना आप. ओके, euphoria means increased sense of फिजियोलॉजिकल वेलबींग, जो हमने वैसे उसमें पढ़ा था वही है सेम. इंक्रीज्ड सेंस ऑफ इंक्रीज्ड सेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल वेलबींग, ठीक है ना. मेंटल वेलनेस को हम बोलते हैं यूफोरिया. ये भी एग्जाम में आता है, याद रखना आप. उसके बाद इलेशन है. अब बढ़ता जाएगा क्या? मेनिया, ठीक है ना. इलेशन मीन्स मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड, ठीक है ना. बड़ा ना, मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड विद, जितना बढ़ेगा उतने सिम्टम्स बढ़ेंगे. जैसे मैंने बोला, विद इंक्रीज्ड साइकोमोटर
एक्टिविटीज, ठीक है ना। मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड विद इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटीज, किसमें होता है? इलेशन में। याद रखना आप, मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड विद इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज, अगर कभी कभार ऑब्जेक्टिव आए आपको एग्जाम में, दैट मीन्स डिफाइंड एज इलेशन। ओके, ठीक है ना, ये एग्जाम में आता है बिकॉज ये सारे इनमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यूफोरिया क्या होता है, इलेशन, एक्साल्टेशन, ये सारा सेम ही होता है, बस इसके टाइप्स अलग अलग है, ठीक है ना। मॉडरेट एलिवेशन ऑफ द मूड, ठीक है ना, जब होगा दैट मींस इलेशन। एक्साल्टेशन में इंटेंस, अब ज्यादा बढ़ेगा, जैसे मैंने बोला ये बढ़ता जाएगा। इंटेंस इंटेंस एलिवेशन ऑफ मूड विद डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। मैंने बोला आपको जब भी सिम्टम्स इंक्रीज होंगे ऑटोमेटिकली फीचर्स भी इंक्रीज होंगे, ठीक है ना, विद डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर मींस साइकोटिक सिम्टम्स आर देयर विद डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर मैंने अभी कहा आपको, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर मींस जो क्लाइंट होता है उसको वो समझता है दैट इज अ फॉल्स बिलीफ। ओके, वो समझता है दैट आई एम इंपॉर्टेंट देन अदर्स, आई एम वर्थ देन अदर्स, ठीक है ना। इंटेंस एलिवेशन ऑफ मूड विद डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, यहाँ ऐसा आएगा एग्जाम में, इंटेंस एलिवेशन ऑफ मूड विद द साइकोटिक फीचर्स इज कॉल्ड एज एक्साल्टेशन, ये याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद है एक्सटेसी। एक्सटेसी मींस सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड, जब पेशेंट में सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड हो, ओके, with intense sense of rapture, with intense sense of rapture, okay। rapture क्या होता है? हैप्पीनेस, इंटेंस हैप्पीनेस, ओके। यहाँ हम बोलेंगे ब्लिसफुलनेस, ठीक है ना। यहाँ हम बोलेंगे इंटेंस हम बोलेंगे इंटेंस हैप्पीनेस, ठीक है ना, बहुत खुश होना, ठीक है ना। सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड विद इंटेंस सेंस ऑफ रैप्चर, ठीक है ना, ये याद रखना, RAPTURE, रैप्चर मीन्स ब्लिसफुलनेस, इंटेंस हैप्पीनेस, ज्यादा खुश, ओके, ज्यादा खुशी, ठीक है ना। ज्यादा खुशी के बाद फिजिकल सिम्टम्स निकलेंगे, ओके। एक्सटेसी के बाद फिजिकल सिम्टम्स निकलते हैं, ठीक है ना। सो एक्सटेसी is severe elevation of mood with intense severe sense of rapture, where rapture means blissfulness or intense happiness. So elevated expansive or irritable mood is divided into 5 types: euthymia, euphoria, elation, exaltation, ecstasy. Okay, आगे बढ़ेंगे हम। स्पीच एंड थॉट डिसऑर्डर्स में क्या है? फ्लाइट ऑफ आइडियाज, द आइडिया शिफ्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जैसे मैंने पढ़ाया था, शिफ्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है ना। आइडिया जो होते हैं वो शिफ्ट होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ओके। इसके बाद है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैंने अभी बोला डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर में क्या होता है, दैट जो क्लाइंट सोचता है दैट ही इज सुपीरियर देन अदर्स। क्लाइंट, मैं यहाँ पे लिखूंगा, थिंक्स दैट ही और शी इज सुपीरियर और वर्थ देन अदर्स, ओके। उसके बाद है डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट सोचता है कि कोई एजेंसी या उसके फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि उसके फैमिली मेंबर्स या कोई एजेंसी उसके पीछे हैं मारने के लिए, ठीक है ना। ये किस में आता है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, या इसका दूसरा नाम है पैरानॉइड डिल्यूजन, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे पैरानॉइड डिल्यूजन, ओके। इसमें क्या सोचता है? एनी एजेंसी लाइक हम बोलेंगे कोई कौन सी एजेंसी, CBI, ठीक है ना। CBI और फैमिली मेंबर्स आर ट्राइंग टू हार्म हिम, ठीक है ना, ठीक है ना। ये किस में आता है? डिल्यूशन परसिक्यूशन एंड इंक्रीजेस साइकोमोटर एक्टिविटीज होती है इसमें, याद रखना आप। स्पीच एंड थॉट डिसऑर्डर इंक्रीजेस साइकोमोटर एक्टिविटीज। उसके बाद अदर फीचर्स, पुअर जजमेंट होता है, डिक्रीज नीड ऑफ फॉर स्लीप होता है, डिक्रीज फूड इनटेक, एब्सेंस ऑफ इंसाइट मैंने बोला था, अवेयरनेस अबाउट वंस ओन मेंटल हेल्थ इज कॉल्ड इंसाइट। साइकोटिक फीचर्स में एब्सेंट होता है, ये याद रखना हमेशा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर विल बी एब्सेंस ऑफ इंसाइट, ये आता है एग्जाम में, ओके, ये याद रखना। साइकोटिक जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें एब्सेंस ऑफ इंसाइट होगा, ठीक है ना। उनको अवेयर नहीं होता है, वो अवेयर नहीं होता है अबाउट देयर ओन मेंटल हेल्थ, ठीक है ना। हाई रिस्क एक्टिविटीज, ओके। देन सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी का दूसरा नाम बोल सकते हैं हाइपरसेक्सुअलिटी, ओके, ठीक है ना। इसके बाद द क्लासिकल ट्राइड ऑफ सिम्टम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है। द क्लासिकल ट्राइड ऑफ सिम्टम्स, ये ऑब्जेक्टिव आता है, इज एलिवेटेड मूड, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ये किसमें है? मेनिया, ओके। मेनिया के क्लासिकल ट्राइड ऑफ सिम्टम्स है एलिवेटेड मूड, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी एंड फ्लाइट ऑफ आइडियाज। देन ट्रीटमेंट इज देयर। इन द ट्रीटमेंट पार्ट, फर्स्ट देयर इज फार्माकोथेरेपी, व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स यू विल गिव, फर्स्ट देयर इज लिथियम, ओके, लिथियम आप दोगे, ठीक है ना। लिथियम का दूसरा नाम लिथियम कार्बोनेट है, ये किसके लिए देते हैं हम? मेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए देते हैं। डोज इसका क्या है? 900 to 1200 mg, ओके। ब्लड सीरम लिथियम क्या कितना होता है? 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ओके। टॉक्सिक लेवल्स कितने होते हैं? देखो इधर, ये इंपॉर्टेंट है, 1.5 to 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? डायरिया, वोमिटिंग, मस्कुलर वीकनेस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना।
इसके बाद अदर मूड स्टेबलाइजर्स आप देख सकते हो, जैसे हमने उसमें दिए मूड स्टेबलाइजर्स कौन कौन से दिए थे, बेंजोडाइजपीन्स आप देख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके, क्लोरोपैरामीन देख सकते हो, ठीक है ना, ऐसी इमिट्रिप्लिन देख सकते हो, ये सारे मूड स्टेबलाइजर्स आप देख सकते हो किस पेशेंट के लिए, पेशेंट हैविंग मैनिया, ओके। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो आप, चेक द लेवल्स ऑफ ब्लड सीरम लेवल, ओके, क्यों करना है मैं अभी बताऊंगा, चेक द लेवल्स ऑफ ब्लड सीरम लिथियम, ओके, नोटिस फॉर एनी साइड इफेक्ट्स, चेक द थायराइड फंक्शंस ऑफ द क्लाइंट हु इज ऑन लिथियम, ठीक है ना, चेक द लेवल्स ऑफ ब्लड सीरम लिथियम, ये है हमें क्यों, बिकॉज लिथियम टॉक्सिसिटी ओकर्स, बिकॉज लिथियम, okay, because lithium toxicity occurs. What is lithium toxicity? When the blood serum level of lithium is above than 1.5 to is above 0.62 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है ना। टॉक्सिक लेवल कितना हो, जब 1.5 पे पहुंचे तब हमें टॉक्सिक सिम्टम्स नजर आता है, लाइक मस्कुलर वीकनेस होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है इसमें, ठीक है ना, एंड अदर सिम्टम्स आर देयर। सो लिथियम टॉक्सिसिटी, जब भी हम लिथियम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे पेशेंट के लिए, हमें जरूरी चेक करना होता है ब्लड सीरम लिथियम कितना है, ठीक है ना, ओके। नोटिस फॉर एनी साइड इफेक्ट्स, जो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर हमें नोटिस करेंगे तब हम बोल सकते हैं कि ये टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। चेक द थायराइड फंक्शन ऑफ द क्लाइंट हु इज ऑन लिथियम, थायराइड फंक्शन क्यों चेक करनी होती है, बिकॉज लिथियम जो होता है, लिथियम टॉक्सिसिटी जब हायर लेवल्स होते हैं ब्लड में, वो डिप्रेस करता है थायराइड ग्लैंड को, क्या करता है, डिप्रेस थायराइड ग्लैंड को, ओके। इसीलिए थायराइड फंक्शन हमें जरूरी देखना होता है इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लिथियम, बिकॉज लिथियम टॉक्सिसिटी कॉज डिप्रेसेस द थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड को डिप्रेस करता है, और हम देख सकते हैं हम अगर किसी को टॉक्सिसिटी होता है उसको लोअर लेवल्स ऑफ थायराइड वैल्यूज होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक चीज जरूरी याद रखना है, मुझे यहाँ पे याद आ रहा है एक वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग इन द लिथियम, दैट हाइपोनेट्रीमिया मीन्स डिक्रीज्ड सोडियम लेवल। नॉर्मल कितना होता है सोडियम लेवल, 135 to 145, 135 to, अगर 135 से नीचे जाए तो हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। हाइपोनेट्रीमिया कैन प्रेसिपिटेट, क्या ये प्रेसिपिटेट करता है, टॉक्सिसिटी। क्यों, हाइपोनेट्रीमिया की वजह से जो एक्सक्रीशन होती है किडनी में लिथियम की वो कम होती है, इट डिक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ द लिथियम फ्रॉम द किडनीज, इसी वजह से हाइपोनेट्रीमिया कैन प्रेसिपिटेट दिस लिथियम टॉक्सिसिटी, कैन precipitate lithium toxicity. So check the electrolyte first before administration of the lithium toxicity. This is very important, ठीक है ना, hyponatremia, ठीक है ना। if there is a toxicity, हम क्या कर सकते हैं, अगर वहां पे किसी कबार टॉक्सिसिटी, हम कैसे मैनेज करेंगे पेशेंट को, विल प्रोवाइड डायूरेटिक्स सो दैट एक्सक्रीशन विल बी मोर, ठीक है ना, हम पेशेंट को कह देंगे डायूरेटिक्स, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ ही हम पेशेंट को नोट्स करेंगे ब्लड सीरम लिथियम लेवल्स, ठीक है ना, ब्लड सीरम लिथियम कितना है ब्लड में, ठीक है ना। बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है, दैट हाइपोनेट्रीमिया, कभी कभार एमएस में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। हाइपोनेट्रीमिया क्या करता है, इट कैन प्रेसिपिटेट लिथियम टॉक्सिसिटी टू डिक्रीज द, बिकॉज इट कैन डिक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ द लिथियम। और आपको लिथियम टॉक्सिसिटी क्या करता है, इट कैन डिप्रेस द थायराइड लेवल्स, ओके। उसके बाद हम पेशेंट को देंगे साइकोथेरेपी और फैमिली थेरेपी, ओके। This was all about the mania, okay, and bipolar disorder. Hope you understand these two topics. These are very important in case of exam point of view. बहुत सारे questions MCQs आते हैं इसमें, okay. Some of the MCQs I have given here. कौन कौन से MCQs, अगर इससे ज़्यादा MCQs आपको चाहिए तो मेरी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए, जो यहाँ पे लिंक दी गई है, okay. And first MCQ is there, elevated mood with increased psychomotor activity is, okay. Elevated mood हो और increased psychomotor, triad of symptoms मैंने पढ़ाए थे, the triad of symptoms in mania, ऐसे ही objectives करने होते हैं, concept याद रखो, the triad of symptoms in mania, okay, is elevated mood, increased psychomotor activities, मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ मैंने बोला था ये, increased mood, increased psycho and flight of idea, psychotic features होते हैं इसमें, ठीक है ना। ये triad of symptoms हैं, ये अब symptoms in mania, increased mood, okay, increased psychomotor activities, और लास्टली क्या होता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ये सिम्टम्स होते हैं मैनिया में, ठीक है ना। यूफोरिया, इंक्रीज सेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल वेलबींग, ये नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन मूड नहीं होगा। परसिस्टेंट डिस्थाइमिया क्या होता है, परसिस्टेंट, ये नया वर्ड है यहाँ पे, परसिस्टेंट
डिप्रेशन, ठीक है ना। अगर बार बार डिप्रेशन हो किसी पेशेंट में, बॉट्स ऑफ डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज डिस्थाइमिया। ये याद रखना, ये कभी कभार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है। व्हाट डू यू मीन बाय परसिस्टेंट, अदर नेम ऑफ परसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। इट्स कॉल्ड एज डिस्थाइमिया। ओके, सो इसका जवाब होगा मैनिया, इसका जवाब होगा मैनिया। द फंक्शन ऑफ ग्लैंड विच इज अफेक्टेड इन द लिथियम टॉक्सिसिटी। ओके, जैसे मैंने अभी बोला लिथियम टॉक्सिसिटी कैन डिप्रेस द थायराइड ग्लैंड, सो इसका आंसर होगा थायराइड। पिट्यूटरी नहीं, एड्रिनल नहीं, पैराथायराइड नहीं है। ओके, इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स एलिवेटेड इन मैनिक एपिसोड, बहुत ही इजी, ठीक है ना। देखो हम यहां से शुरू करेंगे, एसिटाइलकोलिन भी होता है, सेरोटोनिन भी होता है, सो हम इसको टिक करेंगे। नॉर इपिनेफ्रिन होता है, डोपामिन नहीं होता है, ठीक है ना। गाबा नहीं होता है, डोपामिन नहीं होता है, ठीक है ना। सेरोटोनिन होता है, गाबा नहीं होता है, ठीक है ना। सो इसका आंसर आएगा एसिटाइलकोलिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है ना। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स करने होते हैं एग्जाम में, याद रखो। एंड एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू लिथियम थेरेपी इज, ओके, लिथियम थेरेपी का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा, हम यहाँ पे देखेंगे। अगर रिनल फेलियर होगा, एक्सक्रीशन कम होगी तो टॉक्सिसिटी ज्यादा होगी, दैट मीन्स रेनल फेलियर इज द करेक्ट आंसर। एंजिना नहीं, ग्लूकोमा नहीं, एपिलेप्सी नहीं, ओके, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीजेज द एक्सक्रीशन, ओके, ठीक है ना। उसके बाद मेंटल डिसऑर्डर ऑफ मेनोपॉजल वुमन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर बार आता है। ड्यू टू फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू द फिजिकल चेंज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर डिप्रेशन इज, मैनिया नहीं है, ये स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, डिस्थाइमिया नहीं है, इन्वोल्यूशनल मेलांकोलिया इसको बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वोल्यूशनल मेलांकोलिया, ये एग्जाम में आता है, इज अ मेंटल डिसऑर्डर ऑफ मेनोपॉजल पीरियड ड्यू टू फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू द फिजिकल चेंज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर डिप्रेशन। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, ऑल अबाउट the mania and the bipolar disorder. Hope you like the topic. Hope you like the topic. Thank you. Like and subscribe my channel, that is Nursing Officers. Thank you.